हेलो गाइस, दिस साइड कुणाल गर्ग और आप देख रहे हैं टेक वायरल। मैं आ गया हूँ एक नए प्लेसमेंट डायरीज के एपिसोड के साथ और आज मेरे साथ है रसम आनंद मैम, एनआईटी जलंधर से, जिनकी यूएचजी में हुई है, मतलब यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप में हुई है। और फुल ऑन डिस्कशन कर लेंगे मैम से क्या प्रोसीजर होता है और कितनी प्रोग्रामिंग चाहिए होती है, कितना क्या करना था, कितनी प्रोजेक्ट्स होती हैं और क्या इंटर्नशिप का रोल होता है, सब कुछ इसमें कवर कर लेंगे और सीटीसी की भी बात कर लेंगे आज ही पक्का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया और आपने टाइम दिया मेरे चैनल में। You're welcome. तो फिर फटाक से मैम आपकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। Yeah, sure. So my name is Rasamanan and I am currently pursuing final year of BTech in Computer Science and Engineering from Dr. B.R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar. And last year I was selected on campus for internship at UHG. And during COVID, during these 2020 summers, I did my internship for 2 months from UHG only. And after that, I had got pre-placement offer from UHG and I'm currently placed there only. So rest things we'll cover in further talk. बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे मैम। तो मैम ने बोला जैसे उन्होंने इंटर्न से मतलब प्लेसमेंट का पीपीओ, मतलब पीपीओ समझते हैं ना मैम, इसको हम सब लोग बता देते हैं पीपीओ होता है ये। ठीक है, तो वो प्रोसीजर होता है ना, वो जो काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होता है इंटर्न से पीपीओ कैसे होता है, वो भी हम कवर कर लेंगे दोबारा इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम जानना चाहूँगा कि यूएचजी एक कैसी कंपनी है और किस रोल के लिए कॉलेज में आई थी। बेसिकली यूएचजी के दो पार्ट्स हैं। लाइक यूएचजी एक हेल्थ केयर कंपनी है, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप है, तो उसके दो पार्ट्स है, यूएचसी दैट इज यूनाइटेड हेल्थ केयर एंड ऑप्टम, ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशन जो उसका सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो बेसिकली जो यूएचसी है, लाइक यूनाइटेड हेल्थ केयर, वो फाइनेंशियली और इन्वेस्टमेंट साइड के लिए काम करती है, सो दैट जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन आर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट एंड इन हेल्थ केयर सेक्टर इन द कंट्री। इसका हेडक्वार्टर यूएसए में ही है एंड इट इज़ वेरी बिग कंपनी देयर, like very popular and like one of the largest healthcare companies there. And in India also it has started it had started quite a way, but Optum is the software part where we were hired. Like we got internship for Optum in software development only. They also have various roles, but in our campus it visited for software development role only. So basically Optum is a good one. Like mostly almost all the technologies you can think of, they work on those, including machine learning, cloud, and everything you think of, they work on all the technologies there. And during our internship only, before that we were like we contacted with various people there, so we got to know about how various like all these technologies are used in healthcare. The services which we get these days, like our complete history is there in the form of some website. Like you can enter your name and your complete medical history can be there, and various other things which are coming, like robots are being developed and for helping in the healthcare, and various ML is being used for various recommendations and predictions and everything. So how everything is working, what they are working currently on, what role they are playing in COVID and everything, that was all which was discussed. Basically it is a healthcare company helping us to develop softwares. Mainly the work which you as a software developer would do is to develop software so that you can assist the UHC, that is United Healthcare, in their you can say in their ideas which they want to be implemented in the society. So your work will directly affect some people, so that's a very important role you will be playing in the society life. तो बहुत अच्छा ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप सीधा सोसाइटी के लिए कुछ बना रहे हैं और वो सोल्यूशन के काम आ रहा है। तो मैम ने जैसे बताया कि इसमें काफ़ी रोल्स हैं थ्रू आउट, जो भी आप सोच रहे हो टेक स्टैक इस समय, वो सब टेक स्टैक्स पे काम कर रहे हैं, मतलब वेब हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस, तो सब हो गए। अगर आपको इनमें से कोई भी टेक स्टैक आता है, आप इसको एक टारगेट रख सकते हो कंपनी को और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कम्युनिटी को कुछ देने वाले हो, क्योंकि ये सीधा हेल्थ केयर है, तो आपको अच्छा फील होगा। तो मैं बात करूँगा कि इसके प्रोसीजर राउंड्स क्या थे, मतलब कितना प्रोग्रामिंग चाहिए या फिर प्रोग्रामिंग से बिल्कुल हट के कुछ अलग लेके चलती है कंपनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक ऐसा भी नहीं है जैसे आपने कहा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आती है तो यू शुड टारगेट, यू कैन टारगेट अदरवाइज ऑल्सो, बिकॉज इनका क्या है, लाइक हमारा तो कोविड में इंटर्न हुआ था, तो उस ड्यूरेशन पे तो बिल्कुल प्रोसीजर डिफरेंट हो गया था, क्योंकि
हेल्थ केयर इज समथिंग लाइक कि बहुत प्राइवेट डेटा होता है, तो हम्म, वो डेटा हमसे वर्चुअली शेयर नहीं कर सकते थे वो, तो हम लोग उनके एक्चुअल रियल टाइम डेटा पे काम नहीं कर पाए थे बहुत ज़्यादा। ओके। बट हम उनकी कंपनी में क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ करके क्या काम हो रहा है और उन टेक्नोलॉजीज को सीखना हमें उस चीज़ पे मेनली इंटर्नशिप में करवाया गया था, लाइक इट वाज अ ट्रेनिंग काइंड ऑफ ड्यू टू कोविड। बट उससे पहले तक जितने सीनियर्स से और मेरे सीनियर से भी मेरी बात हुई थी, तो उन सबके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही था कि इवन इफ अगर आपको नहीं भी आता है ना, if you are selected for that internship, they provide you some time in the start of internship where you can learn the things on which you will be working. ओके। बहुत हेल्पिंग एनवायरनमेंट होता है, लाइक यू विल बी असाइन मेंटर्स एज वेल, दे विल टेल यू कि क्या तुम्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कोर्सेज करो कैसे सीखो, सब कुछ बताते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको नहीं आता है तो यू कांट टारगेट दैट कंपनी। और बेसिकली अगर टेस्ट की बात की जाए तो इनका प्रोसीजर कुछ ऐसा था कि पहले तो ऑनलाइन राउंड हुआ था जैसे सभी कंपनीज में होता है। जी। इनके ऑनलाइन राउंड में एप्टीट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एप्टीट्यूड के बाद 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं और बाकी सारा एप्टीट्यूड बेस्ड होता है। तो जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं दे आर सिंपल, मतलब कंपैरेटिवली इफ यू आर रेगुलर इन डेटा स्ट्रक्चर्स, तुम्हें बेसिक नॉलेज है डेटा स्ट्रक्चर्स की, कब क्या यूज करना है और एवरीथिंग, देन यू कैन डू दैट इजीली। बट उसके अलावा जो इसका एप्टीट्यूड होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके क्वेश्चंस भी ट्रिकी होंगे कभी और अच्छे भी होते हैं, लाइक मैंने तो 2 बार टेस्ट दिया है बेसिकली। बट वैसे इसका जो ऑन कैंपस इंटर्नशिप के टाइम पे टेस्ट हुआ था उसमें हमें कम्प्लीटली एप्टीट्यूड के बेसिस पे ही रिजल्ट्स आए थे कि एप्टीट्यूड किसका बेस्ट हुआ है, क्योंकि कोडिंग ऑलमोस्ट सभी बच्चे कर लेते हैं, इसके दोनों कोडिंग क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बच्चों के हो जाते हैं, तो इट काउंट्स अ लॉट। तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो यू कैन प्रिपेयर फॉर इट फ्रॉम इंडिया बिक्स। इफ यू आर टारगेटिंग दिस कंपनी, इंडिया बिक्स इज अ वेरी गुड साइट एंड उस पे एप्टीट्यूड के टॉपिक वाइज बहुत कुछ दे रखा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारी प्रैक्टिस है। इवन के टाइम्ड चैलेंजेस भी हैं वहाँ पर, लाइक दे विल there are 20 questions to be completed in 30 minutes and in that way। so उस साइट से मैंने सारा अपना प्रिपेयर किया था इसका एप्टीट्यूड के लिए। एंड देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट राउंड, तो हमारा तो एक ही इंटरव्यू राउंड हुआ था क्योंकि टाइमिंग का इशू था कुछ कंपनी का, क्योंकि हमारा टाइम पे एक्चुअली फुल टाइम और इंटर्न्स का एक ही दिन इंटरव्यूज हुए थे। तो फुल टाइम के इंटरव्यूज के बाद कंपनी के पास बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं था कि वो 2 राउंड्स ले पाए, अदरवाइज 2 राउंड्स भी होते हैं इस कंपनी के इंटरव्यू के। सो इंटरव्यूज में बेसिकली जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने 2 बार इनका इंटरव्यू दिया है, दोनों बार माय इंटरव्यू वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिज्यूमे। लाइक मैंने अपने रिज्यूमे में क्या लिखा है, दे आस्क्ड मी एवरी लिटिल थिंग। सो इतना ध्यान रखना कि रिज्यूमे में कुछ भी गलत नहीं लिखना, जो लिखना है तुम्हें आता होना चाहिए। एवरी प्रोजेक्ट दे कैन आस्क कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में तुमने क्या काम किया, कैसे वर्किंग हुई, कोई पर्टिकुलर फीचर है तो वो तुमने कैसे इम्प्लीमेंट किया, दे कैन इवन आस्क दैट ऑल्सो। मतलब ये नहीं तुम्हें बताना है कि मैंने ये कोड की लाइन लिखी थी या तुमसे कोड पूछ रहे हैं, बट तुम्हें ये बताना है उनको कि क्या लाइब्रेरी तुमने यूज की थी उस पर्टिकुलर टेक स्टैक की जिसके थ्रू तुम वो फीचर इम्प्लीमेंट कर पाए। लाइक एपीआई कॉलिंग के लिए तुम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज करते हो पाइथन में, ऐसे मेरा प्रोजेक्ट पाइथन में था, ऐसे तुमने रिज्यूमे में जो भी लिखा है दे लास्ट। एंड इवन स्किल्स में जैसे मैंने जावा एंड डेटाबेस लाइक डीबीएमएस एंड कुछ सब्जेक्ट्स लिखे थे, तो दे आस्क्ड मी कि आपको आता है, and obviously if you have written in resume you must be knowing about that, so they asked me about every topic, like some questions from Java as well, some queries from DBMS as well, and everything they'll be asking। you have to give them examples, जितना अच्छा explain कर सकते हो ना, जितना अपना resume को actually explain कर सकते हो कि जो मैंने लिखा है वो actually मैं हूँ, तो they'll be इट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दिस कंपनी। मेनली मैंने यही एक्सपीरियंस किया था, लाइक पीपीओ के टाइम पे भी इस बार तो सिनेरियो ऐसा था कि हमें पीपीओ के टाइम पे भी टेस्ट देना पड़ा था दोबारा से। तो आफ्टर आवर ट्रेनिंग एंडेड, लाइक अराउंड 6th week ऑफ माई इंटर्नशिप, देयर वॉज अ टेस्ट कंडक्टेड ऑन हैकर रैंक। एंड उस टेस्ट में बेसिकली इस ईयर क्या नोटिस किया है मैंने कि हमारे कॉलेज में भी कैंपस में इस ईयर भी विजिट की थी बाद में फुल टाइम के लिए कंपनी, तो उसमें भी और जो हमारा पीपीओ का टेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने जो एप्टीट्यूड पार्ट था ना, उस एप्टीट्यूड पार्ट की जगह पे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस डाल दिए थे, लाइक डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स। लाइक 5 sections थे, एवरी सेक्शन हैड 5 questions एंड मेनली वो 5 sections वर लाइक 1 section फ्रॉम जावा,
So these were the all the sections, and every section had 5 questions, and after that there were 2 coding questions, the similar pattern. And during that time also, after HackerRank test, when the results were declared, after that we had interviews, and after one round of interview, they shortlisted students for PPO. But when it visited on campus this year, they took 2 rounds of interviews this time. ठीक है. So it depends upon the company. They can take 1 round as well. They can take 2 rounds as well. ओके. तो जैसे कि मैम ने बताया, टेक स्टैक नहीं भी आता तो आपको वो कंपनी कुछ समय देती है स्टार्टिंग में, आप उसमें लर्न कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट रहा आपके लिए अच्छा. और दूसरा, जैसे टेस्ट का बात किया जाए तो एप्टीट्यूड मेन रखा गया. तो आप भी जब भी मतलब कुछ भी करें तो एप्टीट्यूड को पक्का रखें, क्योंकि एप्टीट्यूड हर कंपनी पूछती है. तो मैं व्यूअर्स आपको बता देता हूँ, आप एप्टीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें. और जो वेबसाइट का मैम ने बोला उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. और जो उसके बाद की बात की जाती है ना कि आपके पास वो राउंड्स होते हैं, जो रिज्यूमे वाला बोला मैम ने कि आपका रिज्यूमे था इसमें. तो इस वाली कंपनी के लिए रिज्यूमे एज अ मिरर हो आप, मतलब जितना आप रिज्यूमे में लिख रहे हो एक वर्ड, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है कि आप वो एक्चुअली हो. अगर आपने उसमें कुछ गलत लिख दिया तो वो आपका लॉस होगा. तो इसलिए बढ़ा चढ़ा के मत लिखो, लिमिटेड में लिखो, और उसमें जो आता है वो लिखो, ताकि जो आपसे पूछा जाए आप उसको कन्फ्रंट कर सको. और फिर जब आपके मैम रिज्यूमे से बात कर रहे हो आप, जैसे आपके रिज्यूमे से उन्होंने पूछा, तो वो फिर आपका ही प्रोजेक्ट ड्रिवन हो गया ना, आपके हाथ में होगी इंटरव्यू सारी, आप चला रहे हो क्योंकि आपने वो लिखा होगा कि मुझे आता है ये चीज़ें. हाँ, इट इज़ बहुत हद तक वो आपके हाथ में ही था, लाइक कि आपने जो लिखा है उसी के बेसिस पे दे विल बी आस्किंग. सो वो तो बहुत हद तक मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी लगी थी. लाइक जो चीज़ तुमने की है, दे वांट टू नो कि तुम एग्जैक्टली जो कर रहे हो वो एक्चुअली कर रहे हो या बस लिखने के लिए कर रहे हो. सो दैट वाज अ गुड थिंग, लाइक टू बी आस्क्ड. बिल्कुल. तो यार फिर यही बात रहा ना व्यूअर्स, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि स्किल्स पे काम करना है. जो स्किल काम कर रहे हो उसको अच्छे से सीख लो, ताकि आपको आगे जाके कोई भी पूछे तो आप उसको बता पाओ कि ये स्किल मैंने क्यों सीखी, तो इसमें क्या क्या है. तो ये रहा. तो मैं फिर अगला प्रश्न मतलब क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये सभी ब्रांचेस को एलिजिबल किया था, एक पर्टिकुलर कुछ ब्रांच और सेक्शन के लिए आई थी? नहीं, एक्चुअली हमारे कैंपस में तो इसने सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही अलाउ की थी, लास्ट ईयर इंटर्न के टाइम भी और इस ईयर प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी. बट बाकी कॉलेजेस का मुझे एज सच बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है. मे बी ईसी भी अलाउ कर देती हो, बट उससे ज़्यादा नहीं अलाउ करती होगी. हाँ, आईटी हमारे बैच के टाइम पे आईटी नहीं थी, बट आई गेस इस टाइम जूनियर्स के लिए तो आई नहीं है इंटर्नशिप के लिए, बट अगर प्लेसमेंट के टाइम आएगी तो दे विल अलाउ आईटी एज वेल. सीएससी आईटी दे विल अलाउ, ईसी इज नॉट श्योर. इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी एंड हाउ पीआर्स अप्रोच एज वेल. तो उसी पे डिपेंड करेगा. तो ये फिर तो सीएससी और आईटी वाले तो बच के रह सकते हैं, आराम से बैठ जाओ, आपके लिए तो है. मतलब ईसी का कोई चांस क्रिएट होता है वो पीआर पे, जैसे मैम ने बोला ना कि कंपनी और पीआर की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा क्या रहता है. तो फिर मैम पूछते हैं नेक्स्ट राउंडिंग है, सीपी कितना रिक्वायर्ड था आपको, कितना लगता है कि सीपी रिक्वायर्ड था, इंपॉर्टेंस कितना था सीपी का इस पूरे में? देखो, इसमें तो कॉम्पिटिटिव का ऐसा नहीं था कुछ भी. लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में यू आर आस्किंग ना. सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का तो इतना नहीं था इस कंपनी के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग. लाइक जो डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आपको आता है ना, तो द कोडिंग क्वेश्चंस आस्क्ड इन द ऑनलाइन टेस्ट यू आर एबल टू क्लियर. इवन अगर इंटरव्यू में भी बाय चांस लाइक यू हैव रिटन इन योर रिज्यूमे दैट यू नो कॉम्पिटिटिव, देन ऑल्सो द क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग, यू कैन डू दैट. दे विल नॉट बी लाइक कोड फोर्सेस टाइप वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं होंगे कि किसी और बहुत जैसे अमेजोन एंड गूगल लाइक टाइप ऑफ इंटरव्यूज में तो काफ़ी हाई टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आफ्टर अ फ्यू राउंड्स. दो की स्टार्टिंग में नहीं, बट आफ्टर अ फ्यू राउंड्स तो दे आस्क गुड लेवल क्वेश्चंस, बट उतना भी हाई लेवल नहीं है. बट हाँ, तुम्हें बेसिक क्लियर होना चाहिए कि कैसे क्या यूज़ करना है. मैंने भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं किया था जब तक मैं सिलेक्ट हुई थी. मैंने ज़्यादा ध्यान डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही दिया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी. ओके. तो ये प्लस पॉइंट रहा आपके लिए, जिनको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ज़्यादा नहीं आता, मतलब ज़्यादा हाथ खुला नहीं है, तो थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए. डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर कब यूज़ करना है, तो आपका काम बन सकता है भाई इसमें कंपनी में पक्का. क्योंकि स्किल की भी बात हो चुकी है पहले, ये स्किल भी आपको टाइम देता है सीखने के लिए. तो आप प्लस पॉइंट आपके पास ही ज़्यादा हो रहे हैं इस समय, और रिज्यूमे भी आपका ही होगा, तो आपका ये सारा कुछ तो अंतिम तक. तो मैं बात करता हूँ कि अगला कि अगर आप सिलेक्ट होते हो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, कि वो आपसे क्या चाहते हैं उसके बाद प्लेसमेंट के बाद. अब तक तो आप प्लेसमेंट हो चुके हैं ना आपकी.
तो अब वो आप क्या? प्लेसमेंट के बाद एग्जैक्टली तो अभी जैसे हम लोग को कांटेक्ट नहीं किया है अबाउट ऑफर लेटर्स, जब तक ऑफर लेटर्स आएंगे उसके बाद हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। बट व्हाट हैपेंस इज लाइक, मैंने अपने सीनियर से बात की थी जो इस ईयर जिन्होंने ज्वाइन किया है ऑप्टम में। सो उनके साथ तो जो जैसे हुआ था कि कोविड का टाइम था तो ज्वाइनिंग थोड़ी लेट थी, बट आफ्टर दे रिसीव्ड ऑफर लेटर्स दे वर असाइंड सम टीम्स। लाइक तुम्हें टीम्स में डिवाइड कर देंगे, वहां पर बहुत सारे टीम्स है, जैसे मैंने पहले भी बोला बहुत सारे टेक स्टैक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है। तो वो तुम्हें टीम्स अलॉट करेंगे बेस्ड अपॉन कि उनको उस टाइम पे कहाँ कहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो वहां पर तुम्हारा हर टीम का एक मैनेजर भी होगा और तुम्हारे साथ कुछ तुम्हारे कलीग्स भी होंगे हु विल बी वर्किंग ऑन। सो वो तुम्हें वहां पर जाकर बताएंगे आफ्टर ऑफर लेटर। उनको एक नोटिस मतलब कुछ कोर्सेज भी मिले थे कि आप इस टीम में जा रहे हो तो इसमें आपको ये कुछ टेक्नोलॉजीज पे काम करना होगा, तो यू कैन स्टडी देम अंटिल यू ज्वाइन। बिकॉज उनके पास टाइम था बिफोर ज्वाइनिंग ना, लाइक अराउंड उनको ऑफर लेटर अराउंड अ मंथ पहले आया था एंड उसके बाद उनके पास वो 1 मंथ था, तो उसमें उनको बता दिया गया था कि आपकी मर्जी है, लाइक यू कैन स्टडी थिंग्स ताकि आपको बाद में थोड़ा हेल्प हो जाए। एंड बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एंड एवरीथिंग बाद में बाकी सब कुछ कंपनी के अंदर जाके तो सेम ही रहता है सब में, बस उतना ही मेन होता है कि उससे पहले क्या प्रिपेयर करना है वो हमें भी नहीं पता होता। बट आफ्टर यू आर असाइंड सम like some particular group in the or a particular team in the company, उसके बाद तुम्हें पता होगा कि तुम्हें मेनली किस पे काम करना है, तो तुम उसको सीख सकते हो उस ड्यूरेशन में। तो एडवांटेज रहा ये भी आपके पास कि उसके बाद का प्रोसीजर तो चलिए थ्रू आउट कंपनी का रहता है, बट आपके पास टाइम फिर भी होता है ऑफर लेटर आने के बाद। तो मैम ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग, फिर मैं आपको पूछ लेता हूँ कि सीटीसी क्या रहता है, कंपनी आपको सीटीसी कितना देती है स्टार्ट? देखो करंटली हमारे कॉलेज में जिस सीटीसी के लिए आई थी इट वाज 13.17 सीटीसी था इसका। एंड इसका 13.17 में से जो फिक्स्ड सैलरी है लाइक जिसको आप बेस बोलते हो इट वाज 11। मतलब इसमें कुछ बहुत ज्यादा स्टॉक्स का नहीं होता रहता है कि स्टॉक्स बहुत ज्यादा है एंड बहुत ज्यादा कट गया, लाइक बहुत ज्यादा शो किया पर बहुत कम दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 13 सीटीसी शो होता है जिसमें से 12 इज देयर बेस, 11 इज देयर बेस सॉरी, एंड बाकी का जो है वो डिफरेंट चीजों में है, लाइक प्रोविडेंट फंड भी तुम्हारा कटना ही कटना है तो उसमें चला जाता है, कुछ मील्स वगैरह के लिए, और बाकी थोड़ा बहुत जो कंपनी के खर्चा हो रहा है तुम पे जो तुम्हारे ऊपर लगा रही है लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग, तो उसके बेसिस पे। एंड हाँ ज्वाइनिंग के टाइम पे तुम्हें रिलोकेशन के लिए 50K मिलता है अलग से, योर ट्रैवल एंड एवरीथिंग वो सब। बाकी हमारे को कंप्लीट स्ट्रक्चर तो अभी आना है, लाइक कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें भी मिलेगा विद ऑफर लेटर, बट हम थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है अभी तक उतना मुझे भी इतना ही पता है कि इतना तो कंफर्म है। इसके अलावा क्या चेंजेस होंगे और क्या ऊपर नीचे होगा वो तो स्ट्रक्चर आएगा तो पता चलेगा। तो फिर मैम ने बता दिया कि सीटीसी, जिसने पूछा था भाई आपको मिल चुका आंसर कि ऑप्टम का कितना है, इसलिए मैंने ऑप्टम का पूरा स्ट्रेटजी कवर कर दिया। जो रिसोर्सेज की मैम ने बात की है घबराओ मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, प्लेटफॉर्म्स की और जो एप्टीट्यूड वाली वेबसाइट बताइए उसका भी मिल जाएगा। तो अगर कोई और डाउट बचा हो व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं मैम से पूछ के रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया चैनल पे, फिर से बोलूँगा थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तब तक लिए व्यूअर्स बाय बाय।